Good morning, students. Now, the fifth adjustment in retirement. This is a 4 or 6 mark question. It can be in exams when they will ask you to calculate the amount due. When they'll ask you to calculate the amount due to the retiring partner, means you have to calculate only for the retiring partner. You have to prepare only retiring partner's capital account. Many adjustments are same as we had done earlier, but here two adjustments will be different. Firstly, to calculate profits till the date, okay, that I am going to teach you. And secondly, goodwill treatment also. The goodwill treatment is same, but again we will just revise. Other entries like revaluation, reserves, surplus, whatever the entries where we were posting in that capital accounts of the partner, they will be same here. The main entry which will be different here is only regarding profits. So that I am going to teach you. See, let us start. Computation of amount due to retiring partner is determined by preparing capital account of retiring partner after taking into account the following. Means you have to prepare the capital account of only retiring partner. जो रिटायर होने वाला पार्टनर है सिर्फ उसी का कैपिटल अकाउंट बनाना है. जब मैं आपको क्वेश्चन में पूछूं कि कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, क्लियर? अगर ऐसा क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन यूजुअली 6 मार्क्स का होता है या 4 मार्क्स का होता है, तो इसमें क्या क्या आएगा? द फर्स्ट थिंग इज इन इट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर. इफ इट क्वेश्चन it is a fixed capital and there is capital account as well as current account balances are there, then you have to pass entry for the opening balances of current account and capital account. Next, share in gain of revaluation. Now you know, during retirement we had done in our last lecture, you have to prepare a revaluation account. Whatever profit or loss is from that revaluation, that entry you have to pass. Share in general reserves and accumulated profits you have to pass. Share of goodwill also you have to give to the retiring partner. Share of profit up to the date of retirement, this I'll explain you how to calculate it. This you have to give. And any kind of salary or interest on capital is due to him, that you have to give him, that you have to credit him. So see, next point, if question is silent amount of payment, like this much amount was due to the retiring partner, if they have mentioned that cash is paid to the retiring partner, then you will at the end mention to cash or bank. But if question is silent, then you have to create a loan account, that this much is transferred to his loan account, कि इतना हमने लोन है retiring partner का हम पर, फॉर्म पर. तो what will be the journal entry? Your journal entry will be retiring partner's capital account debit to रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट. ये लास्ट एंट्री होगी. जो अब टू बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखते हम लोग जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन नहीं आएगा बेटा. यहाँ पे इधर तो आपने क्वेश्चन कहेगा उसको कैश पेमेंट कर दी, इधर तो आपने लिखना है टू कैश और बैंक, या फिर आपने लिखना है उस पार्टनर का नाम लेके लोन अकाउंट, ए इज़ लोन अकाउंट. सपोज ए इज़ रिटायरिंग, सो टू ए इज़ लोन अकाउंट. ये क्लियर है यहाँ तक? अब लेट अस स्टार्ट अ सम नंबर 29 फ्रॉम योर बुक. यहाँ पे बेटा पार्टनर्स थे सी एंड डी, रेशियो इनकी 1:1. सी रिटायर हो रहा है, तो लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट क्वेश्चन में बताया गया है 2800, 2200 एंड 1600 है. तो पहला स्टेप है आपका, मैंने कहा था ना आई विल टीच यू शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट, वो मैं आपको पॉइंट समझा रही हूँ. तो आपने लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स को ऐड करके डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर्स के साथ, यू विल गेट योर एवरेज प्रॉफिट. इट इज़ 2200. अब बेटा 2200 में सी का शेयर कितना था? 1:1 मीन्स हाफ, 1/2. ये जो शेयर है जब सी रिटायर्ड हो रहा है, क्वेश्चन में बताएंगे आपको कि कितने टाइम के लिए. सपोज बुक्स आर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 यू से, एंड सी इज रिटायरिंग ऑन 30th September, ओके, 2018. सो दिस 6 मंथ, मतलब बुक्स क्लोज होने के बाद जब तक वो पार्टनर है जहाँ वो रिटायर्ड हो रहा है उतने महीने आपने कैलकुलेट करके उसके साथ ये प्रॉफिट मल्टीप्लाई करना है. बस दिस वाज द पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू. यही आपका एक नया पॉइंट है, ठीक है? तो ये रिटायर हो रहा था सितंबर में, मार्च को आपके अकाउंट की बुक्स क्लोज हो रही हैं. सो 2200 मल्टीप्लाई हाफ उसका शेयर है और टाइम है 6/12.
तो ये आपके पास अमाउंट आ गई 550। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल कहा था इन्होंने एवरेज प्रॉफिट का 1.5 ईयर ले लेना है, तो 3300 गुडविल आ गया, उसका इसका शेयर कितना उसमें गुडविल का 1650। तो ये दो एडजस्टमेंट्स आपके क्वेश्चंस में थी 29th क्वेश्चन में। अब आपने प्रिपेयर करना है 29th क्वेश्चन में। बेटा इनके दो बैलेंस हैं, एक करंट अकाउंट है, एक कैपिटल अकाउंट है। आपको पता है जब करंट अकाउंट हो तो आपने सारी एंट्रीज करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। तो देखो सीज करंट अकाउंट, सबसे पहले जो आपने वो जो प्रॉफिट्स निकाले उसकी एंट्री आएगी, उसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। लर्न दिस, यू हैव टू मेंशन दिस वर्ड सस्पेंस हियर, ओनली हियर यू हैव टू मेंशन, ओके। जब आप ऐसे प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर रहे हो तो लेजर में क्या आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 550, उनकी गुडविल थी बाय डीज करंट अकाउंट 1650। इस तरफ बेटा इसका बैलेंस आया था, इसका डेबिट बैलेंस था इसलिए टू साइड आ गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 500, तो आपके पास ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 1700 इज योर बैलेंसिंग फिगर। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। फर्दर अब बनाना है सी का कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ब्रॉट डाउन इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 6000, ऊपर से जो बैलेंस है सी का बाई सीज करंट अकाउंट 1700, तो उसको भी कितने पैसे देने हैं आपने, टू सीज लोन अकाउंट 7700। दिस इज योर आंसर, ओके। इन दिस वे यही मैंने एक टिपिकल सा सम लिया था कि जहाँ पे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बनाने हों। इन केस आपने सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनाना था, करंट अकाउंट नहीं बनाना था, तो देखो आप कैसे करते, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बाय डीज करंट अकाउंट, अगर कोई जनरल रिजर्व है बाय जनरल रिजर्व आ जाता, ठीक है। कोई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है बाय रिवैल्यूएशन आ जाता, कोई लॉस है टू लॉस आ जाता, अगर गुडविल राइट ऑफ की है तो गुडविल रिटर्न ऑफ आ जाता, और जो बैलेंस बच जाता, अगर क्वेश्चन कहे बेटा कैश इज इमीडिएटली पेड तो टू कैश और बैंक लिख दो, बट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट और इफ क्वेश्चन इज सेइंग कि उसका लोन, इफ इट इज साइलेंट और सेइंग कि लोन दे दो उसको, तो आपने ये एंट्री डालनी है टू सीज लोन अकाउंट, ठीक है। अगर क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, आपको कुछ नहीं बताया, तो आपने अमाउंट उसके लोन में ट्रांसफ़र करनी है, ये आपने बार ध्यान में रखनी है बात, इसकी नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं, यहाँ पे चीज़ गलत हो जाती है। तो यू कैन सॉल्व एज मेनी एज सम्स यू फाइंड इट, ओके। सारे इसके सम्स निकालो टिल द नेक्स्ट वीडियो। और एक बात बेटा, कई बार क्या होता है, ये जो लोन है ये आगे इंस्टॉलमेंट में आ जाता है, तो आपने वो पॉइंट अभी के लिए छोड़ देना है, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। आपने जितने भी सम्स हैं उनका लोन तक निकाल के रखना है, ठीक है। लोन तक सारे सम्स निकाल के रखो, आगे वाला लोन अकाउंट आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।